students, good morning. I welcome you on my YouTube channel Kumar Avnish English Focus. Hey students, today we are about to study tense. As you know, before this video I gave one video of tense in which I taught you simple present tense, simple past tense and simple future tense. But in today's video we are about to study indefinite, present indefinite, past indefinite, future indefinite, and continuous, present continuous, past continuous, future continuous, present perfect, past perfect and future perfect, present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous. Students, before starting the matter, I request you, if you are watching this video first time, do subscribe and like video and comment also. So students, come to the point. The very first tense, this is part 2 because part 1 video has been uploaded by me and I hope you have watched. So indefinite, today we are about to study indefinite. So before learning how to translate from Hindi into English, we have to know the recognition. It means pahchan. So the very first, I will tell you that indefinite group, continuous group and perfect group, the recognition will be same, only this part will be changed. This part will be changed. Rest thing will be the same. As in present indefinite, in the recognition of present indefinite, I have written here, in the last of verb of Hindi sentences, if ta hai, ti hai, te hai comes, then the sentence is known as present indefinite tense. Once again, in the last of verb of Hindi sentences, if we find ta hai, ti hai, te hai, then the sentence is known as present indefinite tense. I'll give you example, but after recognition. And for past indefinite, everything will be the same, only this part will change. In the recognition of past indefinite tense, you will have to know, in the last of verb of Hindi sentences, ta tha, ti thi, te the, ya tha, i thi, ye the, if comes, then the sentence is known as past indefinite tense. And for future indefinite, the recognition will be the same, only this part will change. In the last of verb of Hindi sentences, ga, gi, ge, if comes, then the sentence is known as future indefinite tense. Now we will go towards continuous. Students, the recognition from indefinite to perfect of each and every tense as present, past, future, the recognition will be the same. As here I have told you indefinite, present, past and future. Now let's go towards continuous, present continuous, past continuous and future continuous. In the recognition of present continuous, we will have to know that in the last of verb of Hindi sentences, raha hai, rahi hai, rahe hai, if comes, then the sentence is known as present continuous. And for past continuous, in the last of verb of Hindi sentences, if we find raha tha, rahi thi, rahe the, then the sentence is known as past continuous tense.
And for future continuous, if in the last of verb of Hindi sentences we find रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, then the sentence will be in future continuous tense. And for present perfect tense, in the last of verb of Hindi sentences चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है. If comes then the sentence is known as future present perfect tense. For past perfect tense, in the last of verb of Hindi sentences रहा था, रही, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे. If comes then the sentence is known as past perfect tense. For future perfect tense, in the last of verb of Hindi sentences चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ये होंगे. If comes then the sentence is known as future perfect tense. Now we have completed the recognition for indefinite group, continuous group, perfect group. Now perfect continuous group means present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous. Here we will know the recognition of present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous. Present perfect continuous, the recognition of present perfect continuous in the last of verb of Hindi sentences रहा है, रही है, रहे हैं. If comes and the time of starting action is given, then the sentence is known as present perfect continuous. For second, past perfect continuous. In the last of verb of Hindi sentences, if we find रहा था, रही थी, रहे थे, and the time of starting action is given, then the sentence is known as past perfect continuous. And for future perfect continuous, if we find रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे in the last of verb of Hindi sentences, then main verb and the time of action is given, then the sentence is known as future perfect continuous. So students, now we have to move towards Hindi examples. Students, बताऊं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कैसे समझेंगे. तो सबसे पहले हम इंडेफिनिट ग्रुप को ही समझ लेते हैं. इंडेफिनिट सबसे पहले प्रेजेंट देखते हैं, फिर पास्ट देखते हैं, फिर फ्यूचर देखते हैं. स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको मैं पहचान बता चुका हूं कि जिन हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, इस प्रकार के जितने सारे सेंटेंसेस हैं वो सभी के सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं. स्टूडेंट्स, टेंस को बढ़िया से समझने के लिए हिंदी टू इंग्लिश, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हमारी जो मदर टंग है वह भोजपुरी है या फिर हिंदी है, इसलिए हमको टेंस भी हिंदी से अंग्रेजी में समझना चाहिए. ऐसा नहीं है कि जो हिंदी से अंग्रेजी में टेंस को समझता है वह केवल अंग्रेजी में समझने वालों से कमज़ोर होता है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. साक्षात उदाहरण आपके सामने मैं खड़ा हूं. I understood the tense from Hindi into English. तो ऐसी कोई बात नहीं है. चूंकि हमको हमारी जो सोसाइटी है where we are living, English spoken people are not available, Hindi spoken people
and Bhojpuri spoken people are available। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को इस तरीके से ही सीखना चाहिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम देखते हैं ता है, ती है, ते है, जैसे हमने कहा। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको टेंस बढ़िया से सीखना है और चलते फिरते आपको सीखना है तो आप गीतों को सुनिए। कोई ऐसा गीत नहीं है जो किसी न किसी टेंस का हो। हर एक टेंस का गीत है, मैं आपको बताऊंगा। तो आइए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के गीतों को देखते हैं, एक दो पंक्तियों को। सबसे पहले कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स लेते हैं। मैं जाता हूं, यही चीज आपको देखना है स्टूडेंट्स। इस वाक्य के अंत में ताहू आया, जो दूसरा होगा वह मुझसे प्यार करती है। ये आप देख सकते हैं। और एग्जाम्पल्स हम लोग लें, जाने चले जाते हो कहाँ, जाने चले जाते हो कहाँ। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। हालांकि ये क्वेश्चन मोड में है, लेकिन आप देख सकते हो सेंटेंस में शब्दों को इधर उधर करने पर पूरा सेंटेंस का अंत जो आएगा वो यही होगा। कोयलिया गाती है, आपने गीत सुना होगा। कोयलिया गाती है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंत में ता है, ती है, ते है आदि आता है, आ रहा है। यहाँ आपने देखा भी, इसमें से ती है आया है, अर्थात यह सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। स्टूडेंट्स, इसको बढ़िया से समझने के लिए आपको बुक का प्रयोग करना चाहिए, किसी ग्रामर की बुक का प्रयोग करना चाहिए, और उसमें से बहुत सारे सेंटेंसेस या बैठकर आप स्वयं भी लिख सकते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इफ़ यू डोंट डू एक्सरसाइज इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड टेंस। आपको सीखना ही पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को देखा। अब हम पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को देखें। अब हम पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को देखेंगे। इसमें हमने आपको बताया कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या था, ई थी, ये थे आदि आता है, ऐसे सेंटेंसेस भी पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं। जैसे मैं वहां जाता था। गीत की पंक्ति को देखते हैं। जीता था जिसके लिए, जीता था जिसके लिए मरता था। मरता था, आप ये देख सकते हैं, ता था। तो यहां आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जिन हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे आता है, वो पास्ट इंडेफिनिट का होता है। और पास्ट इंडेफिनिट का एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन मैं दूर करूं। अगर कोई सेंटेंस, किसी सेंटेंस के अंत में या, ई, ये केवल आता है, या, ई, ये आता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, या, ई, ए वाले को, जैसे
ट्रेन चली गई, चली गई। उसने मुझे मारा, उसने मुझे मारा। तो स्टूडेंट्स आप यहां देख रहे होंगे कि इस सेंटेंस के अंत में है, हैं, हूं नहीं है, था, थे, थी नहीं है, गा, गे, गी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे ये आधा अधूरा सेंटेंस है। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आधे अधूरे लगते हैं इसके बिना, है, हूं, था, थे, थी के बिना। तो ऐसे सेंटेंसेस को आपको कॉपी पर लिखना चाहिए, कम से कम 50 सेंटेंसेस। उसने मुझे काटा, उसने मेरी पतंग काट दी, मेरा गुल्लक फोड़ दिया, मेरी किताब फाड़ दी, उसने एक तमाचा लगा दिया, मैंने उसको पीट दिया, उसने मुझे 2 रुपए दिए। इस तरीके के जो सेंटेंसेस होंगे, याद रखें कि जिसके अंत में या, ई, ये आए, तो ऐसे सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। अब हम चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की ओर। इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको एक्सरसाइज लिखना चाहिए, और जहां भी समस्या आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझसे बात करें, मुझसे पूछें। मैं आपके हर प्रश्न का सॉल्यूशन देने का प्रयास करूंगा। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने आपको पहले ही बताया है कि इन द लास्ट ऑफ वर्ब ऑफ इन दिस सेंटेंसेस इफ वी फाइंड गा, गी, गे, देन द सेंटेंस इज नोन एज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगर गीत की पंक्तियों की बात करूं तो एक गीत आप सबको बहुत भाता है, रात को आऊंगा मैं, आऊंगा मैं। चूंकि ये गीत है इसलिए मैं को अंत में रखा गया है, इसको आप शुरू में ला देंगे तो ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का है। 3 मई को लॉकडाउन हटेगा, हटेगा। 3 मई के बाद दुकानें खुलेंगी, खुलेंगी। हमारा विद्यालय देवस्थली विद्यापीठ अब खुलेगा। तो आप देख रहे हैं गा, गा, गी, गा। तो जिन हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गागे गी आता हो, उन ऐसे सेंटेंसेस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट के होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको समझने के वास्ते आपको बहुत ही अच्छे ढंग से कॉपी कलम उठा करके आपको इसकी प्रैक्टिस करना चाहिए। बहुत सारे सेंटेंसेस को लिख करके पहले हिंदी में आप समझ लें, बाकी आई एम हियर टू टेल यू that how to translate the sentence from Hindi into English. So don't fear and step by step आप इसको सीखें। ऐसे सेंटेंसेस बहुत से आपको मिलेंगे, जब आप सोचेंगे तो बहुत सारे सेंटेंसेस आपके जहन में आएंगे। आप उनको पहले पेन डाउन करें, लिखें। तो गीतों को भी आप सुन सकते हैं, आप पहचान कर सकते हैं कौन फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में गीत है या कौन सी पंक्ति है। तो इस तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट भी समाप्त होता है।
अब प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट डेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट को समाप्त करने के बाद हम कॉन्टिन्यूअस ग्रुप की ओर बढ़ेंगे। कॉन्टिन्यूअस ग्रुप की ओर बढ़ेंगे। बताऊं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि इसकी पहचान तो मैं आपको बता चुका हूं, रहा था, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, गीतों से ही शुरू करते हैं। अगर आपको पसंद है गीतों के माध्यम से टेंस पढ़ना तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आई फाउंड अ लाइन फ्रॉम अ सॉन्ग, गा रहा हूं इस महफिल में, बाय कुमार सानू। गा रहा हूं इस महफिल में, इस महफिल में। आप सेंटेंस को जब सीधा करेंगे तो इस महफिल में गा रहा हूं, तो सेंटेंस के अंत में रहा हूं। सब लोग आराम कर रहे हैं, सब लोग आराम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। यहां भी आप देखेंगे कि रहे हैं आ गया। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आता है, ऐसे सेंटेंसेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में समझे जाते हैं। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो इसमें रहा था, रही थी, रहे थे आता है। आपने बड़ा फेमस सॉन्ग सुना होगा, मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेल पूरी खा रहा था। आपने गीत सुना होगा। यह सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। बताऊं कि कॉन्टिन्यूअस को इम्परफेक्ट भी कहते हैं और प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। इसका सेकंड दूसरा नाम अगर हम देख लें तो इसको इम्परफेक्ट भी कहते हैं, इम्परफेक्ट भी कहते हैं। तो और इसी को प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस की पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। अब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर इम्परफेक्ट या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस की ओर चलते हैं। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे ट्रेन आ रही होगी, ट्रेन आ रही होगी, आप देखेंगे यहां। फिर दूसरा सेंटेंस आता है, सब लोग खाना खा रहे होंगे, सब लोग खाना खा रहे होंगे। दिनेश नहा रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जिन हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में आता है, ऐसे सेंटेंसेस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में होना समझे जाते हैं। अब हम चलते हैं परफेक्ट की ओर, लेकिन डोंट फॉरगेट व्हाट आई टोल्ड यू। मैं आपको 3-4 सेंटेंसेस का एग्जाम्पल देकर बता तो रहा हूँ, लेकिन ये तब तक ठीक से आपको समझ में नहीं आएगा एज लॉन्ग एज आप सेंटेंसेस अपनी कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो दिस इज माय सजेशन टू ऑल DBPNs, all the students of Devasthali विद्यापीठ particularly, कि आप प्रैक्टिस करें, डू प्रैक्टिस, डू एक्सरसाइज, तब जाकर के ये आपको अच्छे तरीके से आएगा।
अब हम चलते हैं परफेक्ट की ओर, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट की ओर। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट का परफेक्ट यहां देखेंगे, पास्ट का परफेक्ट हम देखेंगे और फ्यूचर का परफेक्ट हम देखेंगे। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। स्टूडेंट्स, परफेक्ट के रिकॉग्निशन में मैंने आपको बताया कि इन द लास्ट ऑफ वर्ब ऑफ हिंदी सेंटेंसेज इफ वी फाइंड चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है, देन द सेंटेंस इज नोन एज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मैं टेंस पढ़ चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ, मैं टेंस पढ़ चुका हूँ, उसने, हमारे, प्रिंसिपल साहब ने, प्रिंसिपल साहब, हमारे प्रिंसिपल साहब ने यह आदेश दिया है, यह आदेश दिया है, यह आदेश दिया है। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार के सेंटेंसेस में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये हैं आदि सेंटेंसेस आते हैं। तो अगर इस प्रकार के सेंटेंस में चुका हूं, यदि किसी हिंदी वाक्य में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है अंत में आता है, तो निश्चित रूप से वह सेंटेंस जो होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट का ही होगा। अब पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस को देखते हैं, इसके एग्जाम्पल्स को सबसे पहले देखते हैं। इसके लिए भी आप 20-50 सेंटेंसेस लिखें और समझें। पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे। अगर मैं कहूँ ट्रेन चली गई थी, ट्रेन चली गई थी, ट्रेन चली गई थी। स्टूडेंट्स, मैं बताऊं कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में एक दुविधा हो जाती है स्टूडेंट्स को, ध्यान रखें। इसमें से इसको आप हटा देंगे, थी को, तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में चला गया, ट्रेन चली गई। लेकिन जब गई थी आ गया, इट मीन्स द सेंटेंस इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। दवा बढ़ चुकी थी, दवा बढ़ चुकी थी। मैंने फीस जमा कर दिया था, जमा कर दिया था। तो आप देख रहे हैं या था, चुकी थी, ई थी। इसका मतलब कि इस तरीके के जो सेंटेंसेस होंगे वो पास्ट परफेक्ट में होते हैं। आप इसके लिए बहुत सारे सेंटेंसेस लिखें और समझें। फिर हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट की ओर। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या है कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इन द रिकॉग्निशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इफ वी फाइंड इन द लास्ट ऑफ वर्ब ऑफ हिंदी सेंटेंसेस चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ये होंगे, तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होंगे वो फ्यूचर परफेक्ट में समझे जाते हैं। जैसे ट्रेन चली गई होगी, ट्रेन चली गई होगी। बाराती खा चुके होंगे, खा चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा ऐसे सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट के होते हैं जिसको हम लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं।
इसको भी आप अच्छे तरीके से समझने के लिए हार्डवर्क करें। माना कि पूरा देश लॉकडाउन है, हम सभी अपने घरों पर कैद हैं, लेकिन यह एक अच्छा समय भी है, जो भी अधूरे कार्य हैं उनको पूरा कर लिया जाए। एंड आई नो मैनी स्टूडेंट्स हैव लिसन्ड दैट देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ इंग्लिश ग्रामर, टेंस। बहुतों को आधा अधूरा आता भी है, लेकिन कंप्लीटली किसी को नहीं आता। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कि नहीं आता है। तो स्टूडेंट्स, आई बिलीव कि आप ऐसे पढ़ें तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा। और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको क्लास कैसा लग रहा है मेरा। अब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ग्रुप की ओर चलेंगे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ग्रुप की ओर चलेंगे। प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पहले हम देखेंगे। याद रखें कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो रिकॉग्निशन होता है उसमें थोड़ी सी भिन्नता होती है। इन द लास्ट ऑफ वर्ब ऑफ हिंदी सेंटेंसेस, रहा है, रही है, रहे हैं, इफ कम्स, ये तो आता है, बट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द एक्शन इज गिवन, देन द सेंटेंस इज नोन एज फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आइए हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को। सबसे पहले हम देखें इसके एग्जाम्पल्स को। मैं 2 दिनों से पढ़ा रहा हूं। स्टूडेंट्स, हिंदी के सेंटेंस में एक बात आपको ध्यान रखना है। आप इसको समझ के देखें कि हमारे पढ़ाने का कार्य कब से शुरू है। तो मैं यहाँ साफ लिखा हूँ 2 दिनों से, तो ध्यान रखें ये से आना चाहिए। 2 दिनों के लिए अगर आ जाए तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं होगा। तो और सेंटेंसेस लेते हैं। देवस्थली परिवार के लोग देवस्थली परिवार के लोग 5 दिनों से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। 2 घंटे से वह काम कर रही है। तो स्टूडेंट्स, 2 घंटे से, ध्यान रखें में नहीं आना चाहिए। 2 घंटे में तो सेंटेंस पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं होगा। 2 घंटे के लिए तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं होगा। से 2 घंटे से, 2 वर्षों से, 2 महीने से, 2 दिनों से, इस तरीके के जो सेंटेंसेस आते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैं। अब बेटे, चूंकि हम कई टेंसेस को पढ़े हैं, रिकॉग्निशन और उनके सेंटेंसेस को देखे हैं, इसलिए आप अपने कंप्लीशन की ओर बढ़ रहे हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर मैं शॉर्ट करना चाहूँगा, यहीं से मैं आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी बताऊँगा। इन द लास्ट ऑफ वर्ब ऑफ हिंदी सेंटेंसेस, इफ वी फाइंड रहा था, रही थी, रहे थे, तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें द टाइम ऑफ स्टार्टिंग एक्शन इज गिवन, ये ध्यान रखना है, तो वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा। बस रहा हूँ की जगह रहा था हो जाएगा।
रहा होगा अगर आ जाएगा तो निश्चित रूप से वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। अब आइए हम लोग थोड़ा एक चीज़ और देखते हैं स्टूडेंट्स। कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, continuous and perfect continuous, there are number of similarities but there are a number of dissimilarities also। बहुत सारी समानताएं हैं और बहुत सारी असमानताएं हैं। तो क्या समानताएं हैं मैं आपको बताऊं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को अगर हम देखें तो इसमें रहा है आता है, इसमें भी रहा है आता है। सेंटेंस पहले दोनों को लेते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। इसी सेंटेंस को अगर मैं कहूँ मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो डेफिनेटली जो हमारा कंफ्यूजन है वो दूर हो सकता है। यहाँ देखें ये टाइम दे दिया। बेटे जितने परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस होते हैं उनमें से टाइम को निकाल देने से वो सारे के सारे सेंटेंसेस कंटिन्यूअस में आ जाते हैं। और जितने कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस होंगे उनमें टाइम ऑफ स्टार्टिंग एक्शन लगा देने से, जोड़ देने से वो सारे सेंटेंसेस परफेक्ट कंटिन्यूअस में चले जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें कब से मैं पढ़ रहा हूँ इसके लिए टाइमिंग नहीं है, लेकिन हमने दूसरा सेंटेंस लिखा 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, अर्थात पढ़ने का कार्य मैं 2 घंटे पहले शुरू किया हूँ। तो ये सेंटेंस जो है चूँकि इसमें टाइमिंग है अर्थात ये सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस का है और ये जो सेंटेंस है वो सिर्फ कंटिन्यूअस का है। सिमिलरिटी क्या है? रहा हूँ, रहा हूँ, पढ़ पढ़, मैं मीन्स सब्जेक्ट इज सेम, verb is same, only the time of starting action is extra in this sentence. That's why this sentence is related to present perfect continuous, and this is without time. That's why this sentence is related to present continuous. मैं जहाँ तक समझता हूँ कि निश्चित रूप से आपको ये समस्या दूर हो गई होगी। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब सेंटेंसेस को कैसे हम फॉर्म करेंगे, हिंदी से अंग्रेजी में कैसे ले जाएंगे, वह हम आपको टेंस के पार्ट 3 में बताएंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं और उसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक्स। हैव अ गुड डे।